बताता है कि मसरतें हमेशा यहाँ रक्स करती रहती हैं। तभी तो बेसाख्ता दिल कह उठता है, लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ। क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। Dear children, welcome in your English class. Today I will teach you the rest text of the chapter number 3 of your textbook Rainbow. This is the right choice. The name of the chapter is, and the learning outcome is, today students you will be able to comprehend the text and speak small sentences in your conversation. In the last class I asked you a puzzle. उसका आंसर पहले आप जान लेते हैं. The puzzle was, what is that? Where you enters it blind and comes out seeing. The answer is the school. स्कूल में बच्चा जब जाता है तो उसे ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब स्कूल से बाहर जाता है, बड़ी क्लास में जाता है तो उसे क्या होता है? ज्ञान होता है, दुनिया को देखने की क्षमता होती है. और हमने क्या क्या जाना था पिछली क्लास में? Here the recapitulation. There were 4 characters and these characters names are, this is Rakesh, this is Mukesh, and mother Mr. Yadav is this, and we studied the right choice. In the right choice what we learned? We learned that Rakesh was very much excited and it was his last day of examination, and he comes to his home and puts his bag in a corner and runs towards his brother's room. और राकेश को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसकी जो मम्मी है वो ये कहती है, डोंट गो टू द रूम ऑफ मुकेश बिकॉज ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड तो उसको जो है मम्मी ने कहा उसके मुकेश के रूम का टेबल लैंप खराब हो गया है, गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन. तो वो जाता है, जैसी कोशिश करता है जाने की. मुकेश कम्स आउट फ्रॉम हिज रूम एंड सेज, कांट आई रिपेयर द टेबल लैंप, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर. तो उसकी मम्मी क्या कहती है ये आज हम पढ़ेंगे. और क्वेश्चंस हमारे जो हमने देखे थे, होमवर्क भी आपने कर लिया होगा, उसमें लिखा था कि डिसलाइक्स और लाइक्स के बारे में आपको 10 लाइन्स लिखनी है. एंड वन क्वेश्चन वाज देयर टू राइट डिफरेंट वर्ड्स विद द वर्ड कॉन्वर्सेशन. तो क्वेश्चन कौन कौन से हमने पिछले चैप्टर में, पिछले जो हमारा इसका पार्ट था उसमें कवर किए हैं. व्हाई डिड राकेश एक्साइट एंड व्हाई डिड मदर फॉरबिड राकेश टू डिस्टर्ब हिज ब्रदर. क्यों उसकी मम्मी ने फॉरबिड किया था उसको? बिकॉज हिज एग्जाम्स वर नॉट येट एट दैट टाइम yet over. And what was the name of Rakesh brother? Yes, you know it very well. Mukesh was the name of Rakesh's brother. What thing was not working in the room of Mukesh? Yes, obvious, it is very clear that table lamp was not working in the room of Mukesh. Next हमारा जो टेक्स्ट है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, I am going to read the text. Listen carefully and try to repeat after me. जहां मैं पॉज लेती हूं आपको पॉज लेना है. मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि पॉज कैसे लेते हैं. कॉमा होता है तो पॉज लेते हैं, फुल स्टॉप होता है तो पॉज लेते हैं, कैपिटल लेटर का यूज हम कहाँ करते हैं, और कौन कौन सी पंक्चुएशन हमने देखी थी जिसमें यह था एपोस्ट्रोफी एस का यूज भी हमने पिछले पार्ट में किया था बच्चों. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस वन. दिस लाइन इज, no, don't waste your time. Go and study, she said firmly. Quietly Mukesh returned to his room but could not concentrate on his studies. He was eager to use his electrical tool kit. Mukesh had selected each tool with utmost care.
He kept looking at it. He could not control himself and finally got up to fix the lamp. By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. Wow, Mukesh, you are a brilliant. I knew you would be able to do it, exclaimed Rakesh. Sorry for the trouble, Mr. Yadav. The work is already done, said the mother to the electrician. I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile. Now stop wasting your time and get back to your studies, Mother told Mukesh. On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class. Here, आप ये जानेंगे कि मुकेश ने अपनी क्लास को टॉप किया और टेबल लैंप भी ठीक किया. लाइन बाय लाइन अब हम अपने टेक्स्ट को देखते हैं और इसका हिंदी मीनिंग भी जानते हैं. नो, डोंट वेस्ट योर टाइम. यहाँ देखिए नो के बाद कॉमा लगा है तो वी विल हैव टू टेक पॉज हेयर. बोलते समय हमें वहां रुकना है. डोंट वेस्ट योर टाइम. डोंट, डू नॉट भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों. डोंट वेस्ट योर टाइम. गो एंड स्टडी. क्या करो जाकर के? पढ़ाई करो. ये जो है बच्चों ये स्पीच है रिपोर्टेड किसकी? माँ की. माँ ने जो बात कही एज इट इज जब हम उसको कहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. ये आप अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में देखेंगे. वहां आप जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट्स को तो क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम उस लेसन में जानेंगे. क्वाइटली शी सेड फर्मली. उसने बहुत ही कठोरता से कहा, बहुत ही फर्मली, बहुत भार दे करके कहा. क्या? जाओ और पढ़ो. डोंट वेस्ट योर टाइम. जब मुकेश ने कहा कि मम्मा क्या मैं टेबल लैंप ठीक कर दूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल नॉट मोर देन हाफ एन आवर लगेगा, तो मम्मी ने क्या कहा? डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी. जाओ और पढ़ो. आमतौर पे मम्मियां ऐसे ही तो कहती हैं. क्वाइटली मुकेश रिटर्न्ड. चुपचाप मुकेश वापस आ गया. टू हिज रूम, अपने रूम में. बट कुड नॉट कंसंट्रेट. लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था स्टडीज पे, क्योंकि जिसको जो चीज पसंद होती है ना बच्चों, जब तक वो कार्य वो कर नहीं लेता है तब तक उसके मन में एक उधेड़ बुन लगी रहती है. इसी तरह मुकेश के मन में भी ही वॉज थिंकिंग एंड थिंकिंग कि मुझे कैसे मौका मिले एंड हाउ कैन आई रिपेयर माई टेबल लैंप. अपनी स्टडीज पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ध्यान नहीं दे पा रहा था. ही वॉज ईगर. वो बहुत उत्साहित था, बहुत उत्सुक था. क्या करने के लिए? टू यूज, इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए. हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, जो औजारों की उसकी किट थी, वो इलेक्ट्रिसिटी में जो रिपेयर करने के लिए औजार चाहिए होते हैं उसकी एक किट बनाई जाती है. आप वो किट देखेंगे अपने अपने घरों में होगी आपके. उसमें पेचकस होता है, प्लायर होता है और टेप होता है और डिफरेंट उसके एमएम के तार होते हैं, कॉपर के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं, आप देख सकते हैं. तो ही wanted to use his electrical tool kit. इसके बाद मुकेश had selected. मुकेश ने हर एक टूल को बहुत ही अच्छी तरह से सिलेक्ट किया था. कौन सा अच्छा है? सिंपल उसने जो है अपना पेचकस लिया था, या फिर वो जो स्टार वाला आता है ना बच्चों, स्टार वाला भी उसके पास होगा, क्योंकि जिसको जो काम पसंद होता है वो सारे टूल्स रखता है. सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर. बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षा के साथ उसने अपने टूल्स जो है वो रख रखे थे. ही केप्ट लुकिंग एट इट. और वो देखता रहता था उनको, क्योंकि अभी तो पढ़ाई का टाइम था. ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ. वो अपने आप को रोक नहीं पाया. एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैंप. और फिक्स मतलब ठीक करने के लिए उठ खड़ा हुआ. उसने पढ़ाई छोड़ दी और उस समय टेबल लैंप के रिपेयर को कैसे किया जाए, रिपेयर कैसे किया जाए इसके दिमाग में चल रहा था.
और फाइनली ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, और उसने वो ठीक करने के लिए गॉट अप, गेट अप मीन्स उठा, गॉट सेकेंड फॉर्म है गेट की, तो यहां पर वो उठ गया टेबल लैंप को ठीक करने के लिए। बाय द टाइम, उस समय राकेश रिटर्न, राकेश वापस आता है। उसकी मम्मी ने तो भेज दिया था मिस्टर यादव को लेने के लिए, वो इलेक्ट्रीशियन था उस सोसाइटी का। तो राकेश जो है मुकेश को जब लेकर मिस्टर यादव को लेकर आता है, तो मुकेश हैड ऑलरेडी, मुकेश ने तब तक ठीक कर दिया होता है क्या चीज, टेबल लैंप। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैंप, मुकेश ने पहले ही रिपेयर कर दिया क्या, लैंप। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने एक्सक्लेम किया। जब हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सक्लेम्ड बोलते हैं, या फिर कहते हैं सेड विद सरप्राइज, सेड विद इनकरेजमेंट। तो उसने एक्सक्लेम्ड किया, क्या किया, हृदय की भावनाओं को प्रकट किया। वाओ, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक डंडा, उसके नीचे बिंदी लगी है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका एक्चुअली इसका अपना खुद का मीनिंग कोई नहीं है, लेकिन यहाँ प्रयोग हुआ है ये दिखाने के लिए, वाओ, एक उत्तेजना को दिखाने के लिए कि राकेश कितना खुश हो रहा है, और खुश होकर क्या बोल रहा है, मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो, कुशाग्र हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मुझे पता था कि तुम ये काम कर ही लोगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, अब कौन कह रहा है ये बात, देखो बच्चों, द वर्क इज ऑलरेडी डन सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन मिस्टर यादव थे, वो आए हुए थे, राकेश उनको बुला लाया। तब जब टेबल लैंप ठीक हो गया तो मदर को कहना पड़ा सॉरी फॉर द ट्रबल, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एंड शी वॉज रिग्रेटिंग दैट कि अरे मिस्टर यादव आपको तो परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि आपको बुलाया गया था टेबल लैंप ठीक कराने के लिए, बट इट इज ऑलरेडी डन बाय मुकेश। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। तो अब क्या मिस्टर यादव कह रहे हैं, आई एम श्योर, मुझे पता है, मैं बहुत ही निश्चिंत हूं, क्या, मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश ने ही ये कार्य किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट किसी चीज का ज्ञाता, विद्वान, या उस चीज में पारंगत जो है व्यक्ति को हम एक्सपर्ट कहते हैं। अब क्या कह रहा है मिस्टर यादव, यू ऑलरेडी हैव, तुम्हारे पास ऑलरेडी है क्या चीज, एक्सपर्ट है एक आपके घर में। कौन सा एक्सपर्ट है, क्या काम करता है वो, इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर करता है। तो एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके घर में खुद ही एक एक्सपर्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी फॉल्ट्स होते हैं उनको ठीक करने में सक्षम है। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, और अब करते क्या, वो उसको स्माइल के साथ वो वहां से चले गए। लेफ्ट मीन्स वहां से चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, और अब मम्मी ने जो हिदायत दी वो क्या थी बच्चों, मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश से क्या कहा, नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद मत करो, मतलब रुक जाओ टाइम को बर्बाद करने से। यू गेट बैक टू योर स्टडीज, तुम जाओ और क्या करो, पढ़ाई करो, अपनी स्टडीज, क्योंकि बच्चों एक टाइम का बहुत मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है जब आप लाइफ के इस फेज में होते हैं, क्योंकि पढ़ाई के समय यदि आपने पढ़ाई नहीं की और अन्य कार्य किए तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, समय का सही सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। आप क्या क्या कर रहे हैं, खेलना, खाना और अभ्यास करना। तो आप अभ्यास करिए, खेलिए और अच्छी तरह से खाइए, बाकी सारी चिंता छोड़ दीजिए। टेबल लैंप खराब है या कुछ और खराब है तो वो यदि आपका बहुत इंटरेस्ट है तो आप उसको देख सकते हैं, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर द होल डे इन डूइंग वर्क विद दैट टेबल लैंप, बिकॉज यू विल हैव टू स्टडी विद योर सिलेबस, और योर बुक्स को आप देखेंगे तो उससे जो आपको शिक्षा मिलेगी वो भी एक बेहतरीन
कामयाबी की तरफ ले जाती है। Get back to your studies, mother told Mukesh on the day of the announcement. अब announcement घोषणा हुई किस चीज की? रिजल्ट्स की जब घोषणा होती है तो एक स्पेसिफिक डे सिलेक्ट हो जाता है कि बच्चों आज के दिन आपको कॉपीज दिखाई जाएंगी और रिजल्ट मिलेगा। तो सेम विद हियर डिड विद मुकेश एंड हिज फैमिली। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स मुकेश वेंट टू स्कूल। मुकेश कहाँ गया? स्कूल गया। विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, और मुकेश ने अपनी क्लास में क्या किया? टॉप किया, क्योंकि उसकी मम्मी तो पढ़ने के लिए कहती रहती थी, और पढ़ने में जो बहुत समय देता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त करता है। तो हेयर द टेक्स्ट इज, उम्मीद है आप लोगों को इस टेक्स्ट में कहीं कोई कुछ भी समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम इसमें दोबारा एक निगाह डाल लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। मैं केवल रीड कर देती हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कहाँ पॉजेस लेना है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन को कैसे जल्दी से बोलना है। तो लेट अस डू इट नाउ। डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। क्वाइटली Mukesh returned to his room but could not concentrate on his studies. He was eager to use his electrical toolkit. Mukesh had selected each tool with utmost care. He kept looking at it. He could not control himself and finally got up to fix the lamp. By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. Wow, Mukesh, you are brilliant. I knew you would be able to do it, exclaimed Rakesh. Sorry for the trouble, Mr. Yadav. The work is already done, said the mother to the electrician. I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile. Now stop wasting your time and get back to your studies, mother told Mukesh. On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class. Next, the new words with which you are acquainted here are, this is the list, 9 words. I am going to pronounce them and try to repeat after me. Waste means बेकार, firmly, दृढ़ता से, quietly, चुपचाप, concentrate means ध्यान केंद्रित, eager, उत्सुक, utmost, अधिकतम, brilliant, प्रतिभाशाली, expert, विशेषज्ञ, announcement, घोषणा। बच्चों, यहाँ जो आपको ये शब्द दिए गए हैं, आप इनको प्रयोग करते हुए कुछ नए सेंटेंसेस को फ्रेम करिएगा, तो आपके ये वर्ड्स वोकैबुलरी में शामिल हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक और कन्वर्स विद योर क्लासमेट्स वेरी easily. Here the some questions and their answers are given. The first question is, what was Mukesh eager to do? Mukesh was eager to repair the table lamp. This is the answer of this question. Next question is, why did mother say sorry to Mr. Yadav? Mr. Yadav को माँ ने sorry क्यों कहा? Mother said sorry to Mr. Yadav for the inconvenience. किसी को बुलाया और कोई काम नहीं हमने करवाया तो उसे खामखा हमने तकलीफ दी ना, तो इसलिए सॉरी इज ए मैजिकल वर्ड, इसे हमें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहिए बच्चों. व्हाट डिड मिस्टर यादव से अबाउट मुकेश? मिस्टर यादव ने मुकेश के बारे में क्या कहा? मिस्टर यादव ने मुकेश के बारे में क्या कहा वो देखते हैं. मिस्टर यादव said that Mukesh was an expert electrician at home. घर में ही एक एक्सपर्ट है जिसका नाम मुकेश है. और क्लास को टॉप किसने किया बच्चों? Who topped the class?
Mukesh topped the class. This is the answer of this question. There are 4 questions. You will have to write these questions and the answers of these questions in your notebook. Try to do it very fast because we are going to learn something new. Contraction. इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन बच्चों क्या होता है? अभी जैसे हमने डोंट, डू नॉट को डोंट पढ़ा, तो वो 2 वर्ड को जब हम बहुत जल्दी से तेजी से मिला देते हैं और उसे प्रोनाउंस करते हैं तो बीच में अपॉस्ट्रोफी लगा के हम फटाफट वो वर्ड बोल देते हैं. यहाँ ये वर्ड देखिए आप, कुछ दिए गए हैं इंग्लिश में, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ ही के बारे में जानेंगे. और ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी. जैसे मैं बोल रही हूँ इस तरह से बोलने की कोशिश करिए, जिससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, मुंह का जो बोलने का तरीका है, टंग ऊपर नीचे लगानी है, टीथ में लगानी है, तो उस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे तो फोनेटिक्स से आप बहुत ज्यादा रूबरू हो पाएंगे. कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्टेंड वर्ड मेड बाय पुटिंग 2 वर्ड्स टुगेदर. क्या होता है? बहुत छोटा वर्ड होता है कॉन्ट्रैक्शन. कैसे बनाया जाता है? 2 वर्ड्स टुगेदर करके. द एपोस्ट्रोफी, ये जो एपोस्ट्रोफी आप देख रहे हैं सर्कल स्क्वायर में, ये जो है एपोस्ट्रोफी कॉमा ऊपर दिया गया है, नीचे दिया जाएगा तो ये कॉमा हो जाएगा, लेकिन ऊपर है तो हम इसको एपोस्ट्रोफी ही बोलेंगे. ध्यान रखिएगा, ऊपर एपोस्ट्रोफी, नीचे कॉमा की तरह होता है तो उसको कॉमा ही बोलते हैं. shows where 1 or 2 more letters have been taken out. 1 या 2 letters हटा लिए गए हैं और उनको जोड़ दिया गया है, तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डू नॉट को प्रोनाउंस करेंगे डोंट, डिड नॉट को डिडंट, हीज, ही इज, कांट, कैन नॉट, आई एम, यूर, यू आर, देयर, दे आर, we are, what's, what is, aren't, are not, isn't, is not, doesn't, does not, couldn't, could not, haven't, have not, hasn't, has not, let's, let us, wanna, want to, I want to go to London. जैसे मैं बोलना चाहूँ तो I wanna go to London. तो इस तरह से मैंने want to को क्या बोला? wanna. इसी तरह gonna, gonna means going to. let me means let me open the door. तो let me open the door. let me sing a song. तो let me, अब इंग्लिश जो है ना बहुत फास्ट जो लोग नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, बहुत फास्ट बोलते हैं. तो अब हमारे यहाँ भी इंडिया में बहुत सारे बच्चे इस तरह से कोशिश करने लगे हैं. आप भी कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों. I'll, I will, he'll, he will, you'll, you will. तो एक बार दोबारा से फिर से इसको पढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या बोला है. don't, didn't, he's, can't, am, your, there, where, what's, aren't, isn't, doesn't, couldn't, haven't, hasn't, let's, wanna, gonna, let me, I'll, he'll, you'll. तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों क्या होता है? कोई भी एक स्पीच होती है, जब हम उसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो एक सेंटेंस के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है. हम जब इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश में एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स हो सकते हैं? 8. ठीक है, तो 8 के बारे में हम आज जो पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में. लेकिन इसके बारे में एक शॉर्ट नोटिस पे हम ये जान लेते हैं कि क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक्चुअली व्हाट इज इट? पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेल, it is a part of speech. It just the name given to a word based on the job actually that it does in a sentence. जो भी सेंटेंस में कार्य हो रहा है उसके बारे में जिस वर्ड से हमें पता चलता है वो वर्ड क्या है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग होता है. इसके कितने भाग हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव,
conjunction, preposition and interjection. 8 भाग हो गए ये. Today we learned text of the story, interjections, contractions, some new words and questions, answers. आज के लिए बस इतना ही. Next class में we will meet again. Till then, thank you. खिलौनों का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में खेलते हुए